Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. My dear students, in this video I am going to cover the multiple choice question of the grammar, especially voice and kinds of sentences, and some MCQs of the word building too. So dear students, without wasting the time, let's get started. I request each one of you to please be with me, try to answer these questions along with me and try to understand how we get the right answer of the grammar or how to select the appropriate answer of these grammar MCQs. So here we go. The very first question. I had decided to learn to swim. Change the voice. So for now we are going to see few sentences of voice. So please, before you go ahead, read the question very carefully. I had decided to learn to swim. Now here in this sentence there isn't any object. So here we have to take the object it. So here in the question we have had. So आंसर में भी had ही आएगा. तो यहाँ पर देखो it has, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा. It have, ये तो होता ही नहीं ग्रामेटिकली. और यहाँ पर it was, ये तीनों तीन हमें गलत आंसर मिल जाते हैं. तो इससे ये तो एकदम पता चल जाता है कि राइट आंसर कौन सा है. सो इट हैड बीन डिसाइडेड बाय मी टू लर्न टू स्विम. द राइट आंसर इज सी. Very simple to identify. I had decided to learn to swim. It had been decided by me to learn to swim. याद रखना है कि एक्टिव से जब आप पैसिव में चेंज करते हो तो ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, ये चेंज नहीं होता है, ये वही रहता है. Here we go on the next question. Second one, I was frightened. Change the voice. Dear students, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पैसिव में है, आपको इसको एक्टिव करना है. आपके पास चार ऑप्शंस हैं. I had been frightened, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. अब ये जो क्वेश्चन है आई वॉज फ्राइटन, ये पास्ट में है, तो इसका जो क्वेश्चन है वो सिंपल पास्ट में बनेगा. तो ये देखो यहाँ पर है इट फ्राइटन्स मी. अगर यहाँ पर वॉज की जगह एम होता, आई एम फ्राइटन, तो शायद ये ऑप्शन सही होता. लेकिन यहाँ तो वॉज है और यहाँ पर फ्राइटन्स है, तो ये तो सही आंसर नहीं है. यहाँ पर देखते हैं इट फ्राइटन्ड मी. हमारा जो आंसर है वो है बी है. इट फ्राइटन्ड मी, I was frightened. So सेकंड का आंसर है बी और डी भी गलत आंसर है. थर्ड वन, I had lost all my breath. Change the voice. फिर से एक क्वेश्चन चेंज द वॉइस का. तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट है all my breath. I had lost all my breath. All my breath. All my breath. ये क्या है? Has? बिल्कुल नहीं आएगा. All my breath was? ये भी नहीं आएगा. All my breath have, ये भी नहीं आएगा. D, all my breath had been lost by me. थर्ड का आंसर है D. I hope you are able to understand. थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है दोस्तों. चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सेंटेंस देखते हैं. The screams in my throat were frozen. ये भी पैसिव सेंटेंस है, इसका हमें एक्टिव ढूंढना है. Change the voice. The screams in my throat were frozen. So फोर्थ का आंसर जो है ये भी पास्ट में है, तो इसका जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल पास्ट होगा. The screams in my throat were frozen. It froze the screams in my throat. It frozen बिल्कुल नहीं आएगा. It freezes, अगर यहाँ पर वर की जगह आर होता तो ये सही होता, ये भी नहीं आएगा. It frozed, ये कौन सा वर्ड है? फ्रोज्ड, ऐसा तो होता ही नहीं कुछ, तो फ्रोज्ड गलत है. So the right answer of question number 4 is A. Dear students, please read the question and the answer. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को पॉज लेकर भी सेंटेंस को समझ सकते हैं. चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन. It would take possession of me completely. Change the voice. यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है me. So object takes the place of subject. तो हमारा आंसर जो है वो शुरू होगा I से. अब ऑक्सिलरी क्या है? would. तो आई के साथ वुड ही लगेगा, कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा. तो आई वुड, आई विल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. इट वुड नहीं, यहां पर मी दिया है तो इट कैसे हो गया. आई शुड, ये भी नहीं होगा. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. आई वुड बी टेकन पोजेशन ऑफ कंप्लीटली बाई इट. फिफ्थ का आंसर है ए. So dear students, the next question is of kinds of sentence and that is exclamatory sentence. So here I read the next question, question number 14. I was frightened. Make it exclamatory sentence. I was frightened. So what a frightened I was बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर A है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा. How frightened to me
हाउ फ्राइटन टू बी मी, ये कैसा सेंटेंस बना दिया. हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, ओ टू बी फ्राइटेंड. द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज सी. How frightened I was. I was frightened. How frightened I was. Now you know when we convert into exclamatory हम how या और what का इस्तेमाल करते हैं. जब आर्टिकल ए और एन होते हैं तो what जाता है. जब आर्टिकल ए और एन नहीं होते तो हम how का इस्तेमाल करते हैं. और जब सेंटेंस बहुत लॉन्गर होता है तो हम इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए. चलिए देखते हैं दूसरा. It seemed a long way down. It seemed a long way down. Make it exclamatory sentence. यहां पर भी देखो आप आर्टिकल ए है. अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है उसमें लगेगा what. How a long, बिल्कुल नहीं, गलत जवाब. What a long way down it seemed, बिल्कुल सही. आगे आप जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर है बी. What a long way down it seemed. लेकिन फिर भी चेक करने के लिए आप ऑप्शन सी और डी भी पढ़ सकते हो, बट यहां पर मैं तो बहुत प्रिटी श्योर हूं कि 15 का आंसर बी ही है और बी ही है राइट आंसर. 16. द जंप मेड नो डिफरेंस. मेक इट अफर्मेटिव. चलो याद है ना रूल्स आपको अफर्मेटिव नेगेटिव के. द जंप मेड नो डिफरेंस, नो डिफरेंस नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव बनाना है. द जंप अवॉइडेड फॉर मेकिंग एनी डिफरेंस, ये बात कुछ हजम नहीं हुई. द जंप रिफ्यूज्ड फ्रॉम मेकिंग. द जंप रिफ्रेन्ड. द जंप हार्डली मेड एनी डिफरेंस. क्या बात है, एकदम मैचिंग लग रहा है. यही आंसर है भाई, द जंप हार्डली मेड एनी डिफरेंस. राइट आंसर 16 का है राइट आंसर डी. 17. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मेक इट अफर्मेटिव. नेवर, नेवर नेगेटिव सेंटेंस. आई रिफ्यूज टू वेंट, ये कौन सा इंग्लिश है भाई, रिफ्यूज टू वेंट ऐसा थोड़ी आता है. आई रिफ्रेन्ड टू एवर गोइंग बैक टू द पूल. नहीं नहीं नहीं. C. I avoided ever going back to the pool. 17 का C. D. I avoided from ever going back to the pool. C और D में थोड़ा थोड़ा. So I never went back to the pool. The right answer is C. I avoided ever going back to the pool. So that's your right answer. Dear students, आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार ये फिर से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वापस और एक सेंटेंस अफर्मेटिव का. क्वेश्चन नंबर 18. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मेक इट अफर्मेटिव. सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 बी. आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज अनश्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. 18 का राइट आंसर है बी. बाकी आप पढ़ सकते हो, मैंने तो तुरंत देखकर बता दिया. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. आई वॉज अनश्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. नेगेटिव का अफर्मेटिव. क्वेश्चन नंबर 19. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. यूज नो सूनर. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नो सूनर के रूल्स बहुत ही ईजी हैं. आई गॉट. अब यहां पर नो सूनर के बाद लगेगा डिड, क्योंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. नो सूनर डिड. फिर गॉट का हो जाएगा गेट. तो यहां पर ए नो सूनर डिड आई गेट, बी में भी नो सूनर डिड आई गेट, सी में भी नो सूनर डिड आई गेट, डी नो सूनर डू आई है. तो ये डी तो बिल्कुल नहीं आएगा. अब आपके पास 3 चॉइस है, ओके, ए बी और सी, इसी में से हमारा आंसर है. सो नो सूनर डिड आई गेट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. फिर बाद में जो देन लगता है नो सूनर में देन, तो वो THAN वाला लगता है, THAN. तो जो सी ऑप्शन है उसमें THAN वाला नहीं है, तो ये भी चला गया. अब आपके पास 2 चॉइस रह गई, ए और बी. तो नो सूनर डिड आई गेट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स देन. तो अब ये दोनों ऑप्शन यहां तक सेम है. अब नो सूनर का रूल है कि ये जो लास्ट का सेंटेंस है ना एंड के बाद, ओके, एंड के जगह पर हमने क्या लगाया, देन. तो दोनों में देन है. लेकिन ये जो वेंट टू द पूल है ना, ये हमेशा सेम ही रहता है नो सूनर में. इट रिमेन्स द सेम. अब बी में देखो, आई गो टू द पूल हो गया, गलत. तो राइट आंसर क्या है 19 का? कम ऑन, यस, 19 का आंसर है ए. नो सूनर डिड आई गेट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स देन आई वेंट टू द पूल. दैट्स योर राइट आंसर. ओके. 20. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली. मेक इट नेगेटिव सेंटेंस. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव है, हमें नेगेटिव बनाना है. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली. इट वुड नॉट रिफ्यूज. इट वॉज नॉट रिफ्यूज, नहीं, ये तो नहीं आएगा. इट वुड नॉट अवॉइड टू टेक पोजीशन. अवॉइड टू टेक पोजीशन.
इट वुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, इट वुड नॉट रिफ्रेन टू टेकिंग, टू टेकिंग गलत, ये तो बिल्कुल गलत है, बहुत बुरी तरीके से गलत है। राइट आंसर है सी, इट वुड टेक पोजीशन, इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी, इट वुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग पोजीशन ऑफ मी। रिफ्रेन मीन्स टू रेजिस्ट, टू स्टॉप फ्रॉम टेकिंग पोजीशन, तो मीन्स वो पोजीशन लेगा ही लेगा। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, मीनिंग यहां पर चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग रिमेन्स द सेम। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो 20 का आंसर है सी। Okay dear students, question number 21, this handicap stayed with me as the years rolled by, make it negative sentence. This handicap stayed with me as the years rolled by. This handicap didn't refrain, बिल्कुल नहीं आएगा। This handicap didn't refuse, stayed with me. This handicap stayed with me. This handicap didn't avoid from living. This handicap didn't leave me. This handicap stayed with me as the years rolled by. This handicap didn't leave me as the years rolled by. The right answer of the question number 21 is D, dear students. Try to understand the meaning of the question and the answer. The meaning is the same. This handicap stayed, simple past, answer भी simple past में ही आएगा। Didn't, देखो आप, this handicap didn't leave me as the years rolled by. Question number 22, stark terror took an even deeper hold on me, change the degree. बहुत टाइम के बाद डिग्री वाला क्वेश्चन आया। So before the stark terror had not taken so deeper hold on me as it had now. had कहां से आ गया? यहां तो सिंपल पास्ट है। had, before the stark terror had not taken so deep a hold on me as it did now. Okay, before the stark terror had not taken as deep a hold on me as it had, वापिस had वाला, तो ए और सी तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिफोर द स्टार्क टेरर हैड टेकन सो डीप अ होल्ड ऑन मी एज इट हैड नाउ, दिस ऑल्सो विल नॉट कम। द राइट आंसर इज बी, स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी बिफोर द स्टार्क टेरर हैड नॉट टेकन सो डीप अ होल्ड ऑन मी एज इट डिड नाउ, एज इट डिड नाउ। सो 22 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन को समझो और आप आंसर एक बार फिर से पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि 22 का आंसर बी क्यों है। चलिए देखते हैं आगे। 23, गिव द सिनोनिम ऑफ एवर्जन। 23 का राइट आंसर है डी, डिसलाइक। एवर्जन का सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम डिसलाइक। 24, सिनोनिम वेस्टिजेस का क्या है? सी, लेफ्ट ओवर्स। 24 का राइट आंसर है सी। 25, give the antonym of stark. The antonym of stark 25 का राइट आंसर है lavish, A. So dear students, these are the multiple choice questions of the grammar. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर ये वीडियो आप चाहते हो कि और आपके दोस्तों के साथ पहुंचे तो प्लीज़ शेयर करिए इसे जितना हो सके उतना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ना यार। तो मिलते हैं ऐसी कोई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।